हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूइंग विद द आइडिया ऑफ गॉस थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम? ये कहती है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी उसके थोड़े से हिस्से की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरी सरफेस की बात हो रही है। तो गॉस थ्योरम आपको वो जो फाई कैलकुलेट करके देगी वो पूरी सरफेस का देगी। दूसरी बात, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस माने ऐसी सरफेस जो सब तरफ से बंद है, जिसके अंदर कुछ एनक्लोज हो सकता है, जिसमें कुछ भरा जा सकता है। कोन, सिलेंडर, स्फीयर, मतलब 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए ही ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी। So the total electric flux associated with the closed surface या linked with the closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge which is enclosed in that surface। ये यहाँ पर आपकी थ्योरम कहती है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि इस थ्योरम का प्रूफ क्या है। तो प्रूफ वाला पार्ट में फिलहाल स्किप कर रहा हूँ और हम इसके सीधे सीधे यूज पर आ जाते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई भी एक रैंडम सरफेस किसी भी आकार, and it is a three-dimensional surface, and there are some charges which lies inside it, and there are some charges which lie outside it. Suppose this is a charge of 5 microcoulomb, this is a charge of 2 microcoulomb, this is a charge of 1 microcoulomb, this is a charge of 8 microcoulomb, this is a charge of 4 microcoulomb, this is a charge of 3 microcoulomb, this is a charge of minus say 1 microcoulomb again। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हाउ मच फ्लक्स, लेट मी नेम दिस सरफेस एज एस, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो द सरफेस इज हैविंग अ वेरी irregular shape and it has some charges inside, some charges outside. So if we go by the actual method of calculating the flux, it is a tedious problem, but this theorem makes our task oral. Phi equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface, means we need not concern ourselves about the charges which lies outside the surface. We will simply add up these, but when we add up these we have to take care of their symbols. 8 plus 3 is 11, 11 minus 1 is 10, 10 minus 1 is 9, so the charge enclosed is 9 microcoulomb and that is our flux। अब अगर आप इस फ्लक्स की वैल्यू वर्कआउट करना चाहते हैं तो there are many other ways। You can do it this way, 4 pi epsilon naught into 4 pi into 9 into 10 to the power minus 6। 4 pi से डिवाइड कर दिया, 4 pi से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हो जाता है, दिस इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें बहुत पॉपुलरली मालूम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, so 9 into 4 36, 36 into 9 360 minus 40 326, 324 pi into 10 to the power 9 minus 6 is 3 and voltmeter, that is the unit of flux। So this is how you can write it, or you can divide it by 100 and you can further multiply it by 100, so it becomes 3.24 pi into 10 to the power 5। This is the flux which is associated with this surface। So the important idea is that these will not contribute to the flux associated with it। Over here the flux is coming out to be positive, it means the electric field lines as a whole are going out from this surface। अगर टोटल चार्ज इसके अंदर नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से इसके अंदर आएंगी एंड इन दैट केस फ्लक्स विल बी नेगेटिव। जस्ट इमेजिन कि ये वाला चार्ज नेगेटिव कर दिया जाए और ये दो पॉजिटिव कर दिया जाए, तो 3 plus 1 plus 4, 3 plus 1 plus 1 5, 5 minus 8 is minus 3 and in that case your answer will be negative, यानी कि in that case there would be incoming flux। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है that represent the flux going out from the surface, and if the flux is coming out to be negative it means the flux is coming
इनटू द सरफेस, ये हमारे फ्लक्स का मतलब हो जाएगा वहां पर। और जीरो फ्लक्स का मतलब होगा दैट नो लाइन इज गोइंग आउट और नो लाइन इज कमिंग, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कमिंग इन। जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पर केवल हम दो चार्जेस रख देते सरफेस के अंदर, से -1 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, और अब अगर मैं पूछता हूं बताओ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, देन द आंसर इज सिंपली 0। व्हाई? बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इस सरफेस के अंदर एंटर करेंगी, उतनी ही फील्ड लाइंस इस सरफेस से इस चार्ज की वजह से बाहर चली जाएंगी। सो द टोटल इनकमिंग लाइंस इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग लाइंस, सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो या तो अगर चार्जेस किसी सिस्टम के अंदर एज अ होल 0 हो जाते हैं तो उस सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाता है। सो दैट इज योर गॉस थ्योरम। प्रूफ इसका जनरली आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीबीएसई के पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। इसके बाद में बात आती है कि गॉस थ्योरम तो हमने कैलकुलेट कर लिया जी, फ्लक्स निकालने के काम आ जाएगी, लेकिन केवल उन्हीं केसेस में जहां पर कि सरफेस क्लोज है। ओपन सरफेसेस में आप गॉस थ्योरम को सीधे सीधे नहीं लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लिया जाए कि हम ये कह देते हैं कि देयर इज अ प्लेट, चलिए मैं यही बना देता हूं, से दिस इज अ मेटल प्लेट एंड फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस प्लेट, अब मान लेते हैं कि इसकी जो ये लेंथ है वो 4L है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री लेट मी टेक दिस प्लेट एज ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ 4L है, और इसके सेंटर से 2L डिस्टेंस पर एक चार्ज रख लेते हैं हम कैपिटल Q, और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। सो द सिचुएशन इज लाइक कि मेरे पास में ये एक प्लेट है और यहाँ एक चार्ज रख दिया है, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सब डायरेक्शन में जाएंगी, तो इसमें से भी होकर के जाएंगी, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें नॉर्मली नहीं जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ वैसे जाएंगी। तो मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। द प्रॉब्लम सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ वी गो बाय द ऑर्डिनरी वेज, बट इफ वी गो बाय स्लाइट symmetric considerations into the system, then the problem is again another problem. कैसे? क्योंकि डबल इंटीग्रल आपको सिखाया ही नहीं गया है और उसके बिना फ्लक्स निकलता नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम होगी वो आपको गॉस थ्योरम से ही करनी होगी। अब गॉस थ्योरम के लिए चाहिए क्लोज्ड सरफेस, ये तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो आप क्लोज सरफेस बनाइए, इमेजिन कीजिए। कैसे इमेजिन करेंगे? अगेन मान लिया जाए ये मेरे पास में प्लेट है, तो इधर एक वॉल खड़ी हो गई, 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 4 वॉल्स बन गई। एक इसके ऊपर रूफ बना दीजिए, 5 वॉल्स हो गई, छठी ये खुद हो गई। यानी कि मैं यहाँ पर 5 सरफेसेस और इमेजिन कर लेता हूँ, और उन सरफेसेस को भी इस तरह से इमेजिन किया जा रहा है कि उनमें भी हर एक साइड जो होगी वो 4L लेंथ की होगी। यानी कि अब मेरे पास में rather than a simple plate, I have a cube like this, और इस क्यूब में this side is 4L, this side is 4L and this side is 4L। बाकी जो इसका पार्ट है जो हमें फिलहाल इस ड्राइंग ऑफ सिमेट्री से नहीं दिखेगा, वो मैं ब्रोकन लाइन से दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार का आपको ये क्यूब नजर आना चाहिए। यहाँ भी ये 4L होगा, यहाँ भी 4L होगा, यहाँ भी 4L होगा। प्लेट आपकी नीचे है, ये वाली है आपकी जो प्लेट क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज दिस प्लेट। और हमने क्वेश्चन में ये कहा है कि इस प्लेट के सेंटर के ऊपर चार्ज कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो साइड है ये 4 है, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो क्वेश्चन के अनुसार 2L है। तो अब अगर आप इस फिगर को देखें, देन वी हैव अ क्यूब एंड दैट चार्ज इज लाइंग ऑन द बॉडी सेंटर ऑफ दिस। अगर हम रियलिटी में सोचें तो हमारे पास केवल ये प्लेट है और केवल ये चार्ज है, बाकी जितना भी कुछ आपको डायग्राम में दिखाया गया है वो हमारा इमेजिनेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में आप कंस्ट्रक्शन करते थे 10th क्लास में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, बस। तो अब हमारी सरफेस क्लोज हो गई, गॉस थ्योरम लगाने के लायक सारे इंतजाम पूरे हो गए, तो गॉस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस।
That means flux will be equal to 1 upon epsilon naught into q. That is the flux. But mind it, this is the flux through the whole cube. पूरा का पूरा ये जो क्यूब है उसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है ये पता चल रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें तो केवल प्लेट का निकालना है। अब क्योंकि चार्ज सभी सरफेसेस से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करवाएगा, क्यों? बिकॉज इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो अगर एक सरफेस के फ्लक्स को मैं फाई नॉट मान लेता हूं तो फाई नॉट 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 6 बार आना चाहिए। सो फाई आप यहां लिखेंगे बट phi is equal to 6 phi naught, where phi naught is the flux due to one surface. तो आप यहाँ लिख सकते हैं phi naught will be equal to 5 by 6, that means q upon 6 epsilon naught, and that is the flux through one plate. तो गॉस थ्योरम ने ये क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व करा दिया आपका, अगर आप सिमेट्री कंसिडरेशन करना समझते हैं तो। प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपने समझ लिया। अगली एक और छोटी सी प्रॉब्लम आपसे शेयर करता हूं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक प्लेट है, या चलिए क्यूब मान लेते हैं फिर से, और इस क्यूब की एक वर्टेक्स पर हमने चार्ज क्यू प्लेस करा दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स इन दिस केस, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा। सो ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर सही होगा देन इट्स गुड, नहीं होगा तो मुझे आप ये बताइएगा कि भाई आप अगर चाहेंगे तो अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम कर्व्ड सरफेसेस के केस में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूं कि एक हमारे पास में ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर हमने चार्ज प्लेस कर दिया है क्यू। तो बताइए इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। सो इट सीम्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लेकिन सिमेट्री अगर हम सोचें तो हम यहाँ पर एक स्फीयर को कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से, और स्फीयर के कंप्लीट होने पर जो फ्लक्स इसमें से पास होगा वो हो जाएगा phi इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो फ्लक्स है पूरे सरफेस का, अगर मुझे सिर्फ आधे स्फीयर का पता करना है तो आप ये कह देंगे कि आधे का जो फ्लक्स होगा इससे जो फील्ड लाइन जाएंगी सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाएंगी। तो आधे का जो फ्लक्स होगा phi नॉट विल बी इक्वल टू phi बाई 2, दैट इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और भी इसमें काफी सारे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी तैयारी के लिए फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, कैसे हम उसे डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। 3 छोटी छोटी डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम आज का ये वीडियो खत्म करेंगे। जो 3 डेफिनेशंस हैं वो बहुत कॉमनली यूज होती हैं आगे के डिस्कशन के लिए, इसको आप समझिएगा। एक कहलाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी, this is the term which we use when we have something like a wire or a rod which is very long and it is charged uniformly. So charge per unit length, charge per unit length is called line charge density lambda, and it simply means that lambda dl is equal to dq, और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो सो इट वुड बी इंटीग्रेटेड, दैट इज दिस, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और अगर हम ऐसा मान लें कि सिस्टम इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, और इन दैट केस इट वुड बी लैम्डा एल प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू q। ये एक कांस्टेंट है which can be 0, which can not be 0, it depends सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और ज्यादातर केसेस में आप ये पाएंगे कि ये जो C होगा आपके लेवल में वो 0 ही दे दिया जाएगा, तो आपको मेनली ये बात ध्यान रखनी।
और यूनिफॉर्म अगर सिस्टम है हमारा तो आप सिंपली इसको लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल भी लिख सकते हैं फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के केस में dq बाई dl के बदले q बाई l आ जाएगा, यानी कि q को आप सिंपली लैम्डा l लिख करके भी काम चला सकते हैं। प्रॉपर तरीका ये होगा। तो ये केस तब होगा जब हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम होगा जो कि वन डायमेंशनल नेचर का होगा और वहां पर हम कैलकुलेशंस करना चाहेंगे। दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यह डिनोट की जाती है सिग्मा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। dq by ds या dq by dA भी लिख सकते हैं, इट इज योर ओन चॉइस और कन्वीनियंस। तो यहां से क्या आ जाएगा, dq बराबर सिग्मा ds, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो dq बराबर सिग्मा ds इंटीग्रल। अगर सिस्टम यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन Q is equals to सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ, और अगर हम सिंपल बात करें तो Q इंटू एस ही हो जाएगा। वो S माने सरफेस एरिया प्लस कोई कांस्टेंट जो कि ज्यादातर केसेस में जीरो ही होता है, अदरवाइज हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसको। इसी तरह से आपके पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस आ जाएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं, रो यूज कर देते हैं सरफेस के बजाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो एंड दिस इज डिनोटेड बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन dq is equal to rho d, and that means q is equals to integration of rho d। तो सीधी सीधी बात कही जाए तो तीन लाइन में बात खत्म कर सकते हैं हम। लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में dq is equal to lambda dl, which implies q is equal to integration of lambda dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में dq is equal to sigma ds, which means q is equal to integration of lambda ds। और लाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में जो होगा वो ऊपर मैंने लिख ही दिया है। और अगर सिस्टम के अंदर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मान लिया गया है, दिस इज द केस फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज द केस फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी, and this is the case for surface charge density। So this is the expression for line charge density, surface charge density and volume charge density। अगर सिस्टम यूनिफॉर्म होगा तो we can simply write this equation as rho v, simply this as lambda l, and simply this as, यहाँ सिग्मा आना चाहिए था, मिस्टेक हुआ छोटा सा। So q is equal to sigma। So these are three charge densities। एग्जाम में अगर हम पूछ लेते हैं तो यही डिफाइन हो जाती है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनकी यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो यूनिट बन जाएंगी यहाँ पर। लाइन चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर क्यूब। तो आगे जब हम कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए काम करेंगे, गॉस थ्योरम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके के सिस्टम कहलाते हैं, एक कहलाता है डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज और एक कहलाता है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज उसे कहा जाता है जहां पर कि आप चार्जेस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 4 मेटेलिक बॉल्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो नाउ यू नो दैट यू हैव ओनली 4 पॉइंट्स ऑन योर सिस्टम वेयर द चार्ज इज लोकेटेड। सो दिस इज अ डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। नाउ सपोज आई से दैट देयर इज अ प्लेट which is given a charge Q। Now you cannot say where there is charge on the plate,
The charge is uniformly distributed at all points of the plate. So this is called as a continuous charge distribution. तो continuous charge distribution के केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो वो एक थोड़ा सा tedious task हो जाता है if we go by the ordinary methods of calculation, and in such cases Gauss theorem is a very helpful tool. So we will explore that applications of Gauss theorem in the next video. Thanks for watching.